अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोमिनीन व मोमिनात, नाज़रीन व नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मजलिस ईसाल सवाब शुरू हो रही है। बराए तरहीम में सैयद शाइख हुसैन ज़ैदी इब्न सैयद ख़ादिम हुसैन ज़ैदी। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ आगा बरकत अली से को इसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक और इससे गुजारिश है कि सूरह यासीन से तिलावत का आगाज़ फरमाएँ। आगा बरकत अली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن
إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إن الذي جعل لكم من الشجر يخزر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. जज़ाकमुल्लाह का बरकत। अब गुजारिश करता हूँ जनाब सैयद मुख्तार हसन काज़मी साहब से कि वो तशरीफ़ लें और सौदो सलाम से मजलिस हुसैन का आगाज़ फरमाएँ। सैयद मुख्तार हसन काज़मी साहब।
दुरूद पढ़ दीजिए। ऐ कौन खुदाए अज़ली भूल गए, ऐ कौन खुदाए अज़ली भूल गए, इसरार खफी और जली भूल गए। अब मिट जाएंगे दुनिया से मुसलमान अगर किरदार हुसैन इब्ने अली भूल गए, किरदार हुसैन इब्ने अली भूल गए। एक और देखो, वो अज़्म अमल जाहो हशम याद रहेगा, वो अज़्म अमल जाहो हशम याद रहेगा। और अब्बास का कांधो बे अलम याद रहेगा, अब्बास का कांधों पे अलम याद रहेगा। और शब्बीर तेरे फैज़ को क्या समझेगी दुनिया, और मिट जाएंगी खुशियाँ तेरा गम याद रहेगा, मिट जाएंगे खुशियाँ तेरा गम याद रहेगा। इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले, बाकी हैं मोहम्मद के घराने वाले, बाकी हैं मोहम्मद के घराने वाले। कुछ मिट गए बाकी जो हैं मिट जाएंगे, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। मुमनिन ये थे मुख्तार हसन काज़मी, और मैं इस वक्त दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान से आए हुए हमारे शहरियार मानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोज़खानी करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और खुशनूद इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत पढ़ें एक दफ़ा। एक आध सूज़ का था, उसके बाद सलाम के चंद अशार आप लोगों की जल्द से जल्द। हैदर की फजीलत का बयां है अब तक। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हैदर की फजीलत का बयां है अब तक। तारीख़े ज़माना निगरां है अब तक, कि जिस दर से गई
बिनते असद काबे में कि जिस दर से गई, बिनते असद काबे में दीवार में उस दर का निशान है। अब तक दीवार में उस दर का निशान है। अब तक हैदर की फजीलत का दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। उस्ताद प्यारे खान ने एक सलाम पढ़ा था, उसके बहुत मुख्तसर 2-3 शेर आप लोगों की बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत और मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए भी एक दफ़ा दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली नहीं होती गुनाहगारों पे रहमत, हो भी सकती है नहीं होती गुनाहगारों पे रहमत, हो भी सकती है। कैसे हो सकती है सुने, मोहब्बत हो अली से तो शिफात हो भी सकती है। या अली मोहब्बत हो अली से तो शिफात हो भी सकती है नहीं होती गुनाहगारों पे रहमत, हो भी सकती है। और बशर में कब ये ताकत है कि वो सूरज को लौटा दे, बशर में कब ये ताकत है कि वो सूरज को लौटा दे, मगर यार अब तेरे हैदर में ताकत हो भी सकती है, मगर यार अब तेरे हैदर में ताकत हो भी सकती है। या अली और नहीं हूँ आबिदो जाहिद मगर जाकिर हूँ मौला का। आप लोग खुसूसन जो पढ़ते हैं उनके लिए, नहीं हूँ आबिदो जाहिद मगर जाकिर हूँ मौला का, कि अली के ज़िक्र से मेरी तहारत हो भी सकती है। या अली के अली के ज़िक्र से मेरी तहारत हो भी सकती है। और नहीं करते किसी पर भी तबर्रा हम नहीं करते, जो दुश्मन हो अली के उन पे लानत हो भी सकती है, जो दुश्मन हो अली के उन पे लानत हो भी सकती है। और नबी को छोड़कर भागे है ना मुमकिन है नामुमकिन। गौर से सुनिएगा कि नबी को छोड़कर भागे है नामुमकिन है नामुमकिन है मुमकिन, ये पुरानी उनकी आदत हो भी सकती है। या अली है मुमकिन ये पुरानी उनकी आदत हो भी सकती है। और मसाइब का आखिरी शन,
तसव्वुर में नहीं आता कचहरी ख़त्म होने तक, तसव्वुर में नहीं आता कचहरी ख़त्म होने तक, कि कचहरी में खड़ी खातून जन्नत हो भी सकती है, कचहरी में खड़ी खातून जन्नत हो भी सकती है, नहीं होती गुनाहगारों पे रहमत हो भी सकती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिनीन, ये थे शहरियार मानी। यकीनन एक खूबसूरत इजाफ़ा होंगे अलमेदी के सोज़खानों के पोर्टफोलियो में। गुजारिश है कमर ज़ादी से कि वो तशरीफ़ लाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं यार करूं दुश्मन हैदर की सना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दौलत के लिए फिर गए हक से यकसे, दौलत के लिए फिर गए हक से यकसे, तुम दुश्मन शब्बीर हो लानत तुम पर। और शाम के लश्कर से ये कह कर निकला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हैदर की विलायत पे जो शक करता है, हैदर की विलायत पे जो शक करता है, ईमान है मेरा को जब मरता है, पड़ती है अजल देख के उसका चेहरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आले अबू सुफियान से हमदर्दी हैं, आले अबू सुफियान से हमदर्दी हैं, है दुनिया दावत की भी हद होती है, काफिर अबू तालिब है तो इस्लाम है क्या, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मुल्तमिस हूँ मास्टर न्याज़ अहमद साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम पेश करें इमाम की बारगाह में। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सलवात पढ़ें, सलवात पढ़ें। हो पढ़धा कसीदा सोने पी
दा हो पढ़दा कसीदा पढ़दा मैं कसीदा सुने पीर अली दा हो पढ़दा कसीदा सारे सुनावो हो रल के सुनावो हो नारा अली दा हो पढ़दा कसीदा ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीरे मैं क्या दसावां ओ कितना अमीरे तहतुल सिरातों अर्शे बरी तक सारे दसारा हो रकबा अली दा हो पढ़दा कसीदा भुखियां ते नंगियां दा मौला वाली आया सवाली हो जावे न खाली मैं बनया मंगता शेरे जली दा सलवात पढ़े हो मैं बनया मंगता शेर जलीदा सारे सुनावो हो मिलके सुनावो हो नारा अली दा हो पढ़दा कसीदा ओ झुकिया मैं दर ते ओ बन के सवाली हो झुकिया मैं दर ते बन के सवाली इज्जत मिली ये हो जग तो नराली पे लोक आधिन मैं कु कलंदर ओ पे लोक आधिन मैं कु कलंदर ओ पे लोक आधिन मैं कु कलंदर ओ पे लोक आधिन मैं कु कलंदर सगहा मगर मैं अली दी गली दा ओ पढ़दा कसीदा सुन पीर अली दा ओ पढ़दा कसीदा। ये थे मास्टर नियाज़ अहमद जो अपना खसूसी कलाम आपके सामने पेश कर रहे थे। अब आखिर में दरख्वास्त करता हूँ ज़ाकिर अहले बैत जनाब अज़हर मेहदी ज़ैदी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोज़ख़ानी करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
बावाज़ बुलंद सलावत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। एक बार फिर बावाज़ बुलंद सलावत। अली के नाम से तूफान खौफ खाते हैं, अली के नाम से तूफान खौफ खाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं वो इसमें डूब जाते हैं। फरिश्ते कब्र में कुछ और पूछते ही नहीं, ज़बां से नाम अली सुन के लौट जाते हैं। सलाम की चंद अशार। सब्र और रज़ा का दर्स सिखाया हुसैन ने, कलमे को ज़ेरे तेग सुनाया हुसैन ने। अकबर 18 साल के बेटे जवान का टूटी कमर से लाशा उठाया हुसैन ने, कटवा दिया खुशी से है 6 माह का पिसर, घर बार राह हक में लुटाया हुसैन ने। इस्लाम के शजर को जरूरत थी खून की, इस्लाम के शजर को जरूरत थी खून की, इस वास्ते था सर को कटाया
हुसैन ने सब्रो रजा का दर्स सलावत। ये थे ज़ाकिर अहले बैत हज़रत मेहदी साहब। मुनाफिक को ये मोमिन की सदा अच्छी नहीं लगती, मुनाफिक को ये मोमिन की सदा अच्छी नहीं लगती, यजीदी हैं जिन्हें शय की अज़ा अच्छी नहीं लगती। और पढ़ा है करबला का कायदा बाकायदा हमने, पढ़ा है करबला का बाकायदा कायदा हमने, हमें बाकायदा अलकायदा अच्छी नहीं लगती। और इन्हीं कलमात के साथ मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम क़िबला व काबा सखावत हुसैन संदालवी साहब से कि वो रौनक अफरोज़ मेंबर हूँ और मेरे वालिद की मजलिस तहरीम से खिताब फरमाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोमिनीन मोमिनात, एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमीन सैयद शाइक हुसैन ज़ैदी इब्ने खादिम हुसैन ज़ैदी, सैयद कायम हुसैन ज़ैदी इब्ने खादिम हुसैन ज़ैदी, कमर फ़ातिमा बिनते खादिम हुसैन ज़ैदी, कैसर फ़ातिमा बिनते खादिम हुसैन ज़ैदी, महमूदा बेगम बिनते मोहसिन अली, कुदसिया बानो बिनते मोहसिन अली, असगरी बेगम ज़ौजा अली रज़ा रिज़वी, मोहम्मद रज़ा इब्ने अली रज़ा, इस्मत आरा बेगम, मसूदुल हसन ज़ैदी इब्ने सईदुल हसन ज़ैदी, हुस्न आरा बेगम बिनते अली रज़ा, बरजीस बेगम, नरजिस बेगम, रिहाना बेगम, नरजिस बेगम बिनते अली रज़ा, रिहाना बेगम बिनते मदद अली, नौशाद रज़ा इब्ने सिब्तैन ज़ैदी, साजिद ज़ैदी, सैयदैन ज़ैदी, मोहम्मद रज़ा इब्ने कासिम हुसैन ज़ैदी, हुब्बे ज़हरा ज़ौजा मोहम्मद तालिब जावेद रिज़वी इब्ने सदरुद्दीन ज़ैदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हाज़िहिल फ़ातिहा व सूरतल इखलास व क़राअत सूरत यासीन व ज़िक्र वल मजलिस वल इफ्तार व नज़र बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदत निसाइल आलमीन अल अइम्मत तय्यबीन इला अरवाहिल मंज़ूरीन अल मज़कूरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन वख़्लुफ़ अला अहलिहिम फ़िल गाबिरीन वजअलहुम इंदका फ़ी अअला इल्लिय्यीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ नादि अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायतिका या अली या अली या अली।
काबिल कदर सादात व मोमिनीन व मोमिनात अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज सैयद शाइक हुसैन जैदी इब्ने सैयद खादिम हुसैन जैदी की मजलिस तरहीम और जैदी फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात की मजलिस तरहीम के लिए जो उन्वान सुखन मुंतखब किया है वो है नादे अली का सिलसिला नंबर 8। आज ये 8वीं तकरीर है। सबसे पहले तो मैं 2 आयतों के इक़्तिबास पढ़ूँगा, नादे अली का मफहूम समझ में आ जाएगा। पहला इक़्तिबास तो ये है कि इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, ये सूरह तौबा में है। वो जो गार वाले साहब हैं उनके साथ इज़हुमा फिल गार, जब वो गार में थे उससे पहले कहा अगर तुम मक्के वालों मेरे रसूल की मदद न करो तो अल्लाह रसूल की मदद करेगा। अब इस हिजरत में मदद किसने की है? मदद उसने की कि जो शबी है पैगंबर बन के सोया। तो ये मदद इसलिए भी हुई, इसको ज़रा जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा कि कुरान ये कह चुका है जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, कुल ए मेरे अभी फरमा दीजिए जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, फरमा दीजिए कि हक़ आ गया बातिल भाग गया, बातिल तो था ही भागने वाला। ये आयत उस दिन जिब्रील ने पढ़ी थी बुलंद आवाज से जब मौला अली काबे में पैदा हुए, अभी कुरान नहीं उतरा। कोई समझ रहे? शागिर्द भी पढ़ रहा है कुरान उतरने से पहले, उस्ताद भी सुना रहा है कुरान उतरने से पहले। तो गोया बातिल है फरारी, भागने वाला। लन यनफाकुमुल फिरारो इन फरर तुम, कुरान कहता है तुम्हें फरार कोई फायदा नहीं देगा। और हजरत नूह ने भी यही शिकायत की थी कि मैं इनको पुकारता रहा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मगर ये मेरी पुकार पर फरार करते रहे। तो फरार एक बहुत बड़ी लानत है कि मैदान से इंसान भाग जाए, मर्द का मैदान होना चाहिए। अब ईमान से बताएं कि क्योंकि अल्लाह कह चुका था और कहेगा बाद में भी, कुरान जब नाजिल होगा कि फरार तो है उसके लिए जो बातिल है। और अगर आज ये काफिर कह दे कि आज मोहम्मद क्या करने गया था, मैदान से हट गया था, अगर अली की मदद ना होती तो रिसालत पे इल्जाम फरार आ जाता। समझे समझे जरा खुदा। ये है मदद अली की। दूसरा इक़्तिबास आयत का है वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, अल्लाह फरमाता है हर एक के लिए मददगार है मगर जालिमों का कोई मददगार नहीं। जालिम या अली मदद न कहे, आदिल पुकारते रहे या अली मदद। अब सुनिए, एक रिवायत है बिहार से है और भी किताबों में है, बिहार से मैं ये पढ़ रहा हूं कि इब्ने अब्बास कहते हैं बैनना रसूलुल्लाह जालिसुन, एक रोज रसूल हमारे दरमियान बैठे थे। इज नजरा इला हय्यतिन कान्नहा बेरुन, हुजूर ने देखा कि सामने एक अजदहा आ गया
ऐसे लगा जैसे कुआं हो या ऊंट हो। बाज ने बेर लिखा है, बाज ने बईर लिखा है। बईर कहते हैं ऊंट जितना, बेर कहते हैं कुएं जितना। कोई भी हो, खा वो जमल वाले हो या बेरुल अलम वाले हो, फाते तो अली ही है। तो हमने देखा कि नबी की नजर पड़ गई उस अजदहा पर जो इतना बड़ा अजदहा था। फहम्मा अलीयुन अन यज़रिबहा बिल असा, अली ने आसा पकड़ा और आसा लेकर इस अजदहा को मारना चाहा। तो नबी ने कहा या अली जरा रुक जाइए, बताऊं ये है कौन अजदहा? इन्नहु इब्लीसुन। समझे समझे जरा, ये है इब्लीस। और फिर फरमाते हैं मैंने अल्लाह से अखज़्तु अलैहि शुरूतन, मैंने अल्लाह से इब्लीस के बारे में कुछ शर्तें मंजूर करवाई थी। उनमें से एक शर्त ये थी मा युबग़िज़ुका बेबुग़्ज़िन इल्ला व शारकहु फी रहम उम्मिही, जो आपका बुग़्ज़ रखने वाला आपका दुश्मन होगा, अल्लाह से मैंने लिखवा लिया था कि उसके मां के रहम में इब्लीस दाखिल हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे आप? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वज़ालिका कौलुहु वशारिकहुम फिल औलाद फिल माल वल फिल अमवाल वल औलाद। कुरान जो कहता है कि ऐ शैतान तुझे इजाजत है माल में भी घुस जा, औलाद में भी घुस जा। तो कहा यह मतलब है कि जो अली से बुग़्ज़ रखता है उसकी विलादत में इब्लीसियत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो पता चला कि इंसान तो मजबूर है अली की मदद के लिए विलादत से पहले रहम मादर में के बुग़्ज़ अली न रखे, ताकि उसकी नेचर में इलाहियत आए, इब्लीसियत ना आए। अली की मदद का तो हर बंदा ही मोहताज हो गया, रहम मादर में इब्लीसियत आ जाएगी अगर अली से बुग़्ज़ रखा। अब यहां मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, यहीं पर आज ही इत्तेफाक से इस मजमून से ये रिवायत मैं आज पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं। हुब्बु अलीयिन हसनतुन, अली की मोहब्बत है ऐसी नेकी ला यज़ुर्रु माहा सय्यअतुन मा अदा इल फराइज, फराइज बंदा अदा करता रहे तो कोई बुराई उसके साथ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। व बुग़्ज़ुहु सय्यअतुन ला यनफ़उ मा हसनतुन व इन अद्दल फराइज, अगर बंदा सारे आकाम इस्लाम भी अदा कर ले और दिल में बुग़्ज़ अली हो, ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना ज़कात कबूल है। सब मिल के बोलो अली अली, मुनकिर की तबाही अली अली, तेरी कब्र के बाहर अली अली, तेरी कब्र के अंदर अली अली, नारे हैदरी। अब रिवायत सुन ले जाबिर की। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने हदीस शरीफ किस्सा को हम तक पहुंचाया है।
वो ये फरमाते हैं कि हम एक रोज़ बैठे हुए थे पैगंबर के पास और सामने अली भी बैठे थे, तो नबी ने अजब जुमला फरमाया, मा आसानी कौमुम मिनल मुशरिकीन इल्ला वरअयतुहुम बिसाहमिल्लाह। जब भी किसी मुशरिक गिरोह ने सर उठाया मेरी जिंदगी में, मैंने उन्हें अल्लाह का तीर मारा। थक गए हैं मेरे ख्याल में आखिरी दिन। आज लकब और सुन लें जरा, मैंने उस कौम को जिसने मेरी मुखालिफत की अल्लाह का तीर मारा। फकीला मा सहमुल्लाह या रसूल अल्लाह। साहबा किराम की जमात ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो अल्लाह का तीर क्या है जिसे आप मुशरिकों को मारते रहे? कहा सहमुल्लाह अली इब्न अबी तालिब। ये तो ये आप नहीं कहते झगड़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं तीर निकाल लो। गोया जिसने भी जब कहा तीर निकालो तो निकाला है सिर्फ अली को, और कोई निकालने के काबिल ही न था। तो ये है अली की मदद कि मैंने हर मुखालिफ को अल्लाह का तीर मारा, और वो अल्लाह का तीर है अली इब्न अबी तालिब। अली के सारे अलकाब में आज इसका इजाफा कर लेना कि अली सहमुल्लाह भी है। मा अबरज़तुहु लिसारिन व मा बास्तुहु फी सरियतिन इल्ला व जिब्रील अला यमीनिही व मिकाईल अला यसारिही व मलकुल मौत अमामहू। मैंने किसी जंग में, किसी इंतकाम में, किसी गज़वे में, किसी सरिये में अली को नहीं भेजा। अली जब जाते थे तो यूं बन ठन के जाते थे कि दाएं जिब्रील होते थे, बाएं मिकाईल होते थे, आगे मलकुल मौत होते थे। अली के जाने का अंदाज ये है कि दाएं हैं जिब्रील, बाएं हैं मिकाईल। आप कहते हैं ना ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, जिसके बाएं हाथ का खेल मिकाईल हो। समझे समझे खुदा ना, जरा तकल्लुफ में ना बैठे, ये मौला अली की मजलिस है। बेखैरिन नस्रे व ज़फर। उस वक्त तक ये फरिश्ते रहते थे साथ जब तक मदद मुकम्मल ना हो। अब मसला हल हो गया कि वो बद्र में सारे फरिश्ते अली की शबीह बन के क्यों आए थे। मदद का मफहूम हमें अली के बगैर अच्छा ही नहीं लगता, या अली करे या शबीह अली करे।
एक हदीस शरीफ और भी सुन लीजिए, अगरचे ज़ौक़ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आखिरी दिन है, थक चुके हैं आप, मैं ज़बरदस्ती ही पढ़ रहा हूँ, मगर अब मजबूर हूँ, ज़ाहिर पढ़ना तो है, क्या करूँ, ज़ौक़ कोई नहीं रहा बिल्कुल, सब माशाल्लाह सो रहे हैं। जो देर से आते हैं वो तो बोले, हम गरीब तो दोपहर से यहाँ ज़बह हो रहे होते हैं, देर वाले तो बोला करे, वो तो फ्रेश होते हैं। तो आप ज़रा मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में सुनिए, एक हदीस शरीफ और सुन ले, मैंने आज तक ये यहाँ नहीं पढ़ी। या अली गफ़र अल्लाह लके लका गफ़र अल्लाह लका, या अली अल्लाह ने मग़फ़िरत लिख दी है आपकी मिल्कियत में, माफ होना चाहते हो तो अली की मिल्कियत से फायदा उठाओ, मिल्कियत है। आपके लिए मिल्कियत है मग़फ़िरत, और किसके लिए? वाले अहले बैतिक, और आपके अहले बैत के लिए लिख दी है मैंने अल्लाह ने मग़फ़िरत, माफ़ी, गुफ़रान, अपनी चादर रहमत में लपेटना मैंने लिख लिया है, हादसात से बचाना, मुसीबतों से बचाना, अपनी खोद इलाही में कवर कर लेना आपके लिए लिख लिया है, आपके अहले बैत के लिए लिख लिया है। यहीं तक हदीस होती तो ज़हमत न देता, वाले शियते का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैंने आपके शियों के लिए मग़फ़िरत दे दी, और यहीं तक नहीं, वाले मुहिब्बी का, वाले मुहिब्बी शियते का, व मुहिब्बी शियते का, आपके चाहने वालों के लिए भी, आपके शियों के चाहने वालों के लिए भी, आपके शियों के चाहने वालों के चाहने वालों के लिए भी। जाए देखें ना भाई, और सुनाऊं, इन्नल्लाह युबाही ले अलीयिन बैनल मलाइकतिल मुकर्रबीन, अल्लाह डेली बेसिस पे, यौमिया, तवज्जो रहे, यौमिया अल्लाह फरिश्तों को करता है जमा, अपने करीबी तरीन फरिश्तों को, और उनमें बैठकर अली पर करता है फख्र। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आप ही नहीं फख्र कर रहे कि आप अली वाले हैं, अल्लाह फरिश्तों में फख्र करता है, और कहता क्या है? कहता है हनीअन बखिन बखिन हनीअन लका या अली। भैया अली वहां तो नहीं बैठे होते ना, अल्लाह कहता क्या है? मुबारक हो, मुबारक हो, जन्नत की बशारत हो आपको या अली। अब समझ में आई बात। इज़ा दुक्कतिल हलक़तु अला बाबिल जन्नत, जब जन्नत का दरवाजा खुलता है, 8 दरवाजों पर अल्लाह ने डोरी लगाई है याकूत अहमर की, जब दरवाजा खुलता है तो दुक्कतिल हलक़तु, वो डोरी हिलती है और गुनगुना के कहती है या अली, या अली, या अली। तो जब 3 मरतबा या अली आ जाए, समझो नादे अली पड़ी गई या जन्नत का दरवाजा खुल गया। अल्लाह करीम जनाब राशिद ज़ैदी साहब, उनकी बेगम साहबा के जमी मरहूमीन मरहूमात को जवारे अहल बैत में जगह अता फरमाए, और आज जो उन्होंने इफ्तार का एहतमाम किया है, अल्लाह इसके बदले में उनके तमाम मरहूमीन को माफ़ फरमाए, और हम सब का ख़ातिमा अलल खैर हो। माशाल्लाह कसीर तादाद से मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं, मोमिनात। अल्लाह ताला शिरकत कुनिंदगान को इस मजलिस में जो आए हैं अजर जज़ील मरहमत फरमाए, और रमज़ान की बरकतों से हमें नवाज दे।
जो कुरान हमने पढ़े, जो इबादतें की, अल्लाह कबूल फरमाए और आइंदा भी इसी तरीके से खुदा हमें तौफीक खैर मरहमत फरमाता रहे और मौला अली अलैहिस्सलाम की मदद के बायस अल्लाह ताला हमें उसवा तक़वा बनाए, उसवा ज़ुहद बनाए, तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार फरमाए। मजलिस तमाम हो गई, बस मैं 2 जुमले कहूँगा और ये फरमाइश है हमारे जावेद साहब की, और वो 2 जुमले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ख़ुद अली हैं और इनके ख़ानदान में फिर 3 अली और हैं। एक अली जो सारी ज़िंदगी रोते रहे, एक अली के जिसके ज़ीन से गिरने से फर्जंद रसूल की आँखों की बिनाई ख़त्म हो गई थी, और एक अली इतना छोटा था और उसे इतना बड़ा तीर लगा कि जो तीर उसके वज़न से ज़्यादा था। ये जनाब लैला, जनाब रबाब, ये कोई बनी हाशिम की ख़वातीन नहीं थी। बीबी ज़ैनब के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, सब्र, इस्तिक़ामत समझ में आती है जिनको आगोश रसूल मिली हो। ये तो बाहर की बीबियाँ हैं। ये जनाब लबाबा ये किस दर्जे पे पहुँचाया है कि कड़ियल जवान बेटे की लाश आती है तो कोशिश करती है कि हुसैन को सहारा दे, और छोटे बच्चे की लाश आती है तो रबाब की कोशिश ये है कि हुसैन को तकलीफ ना हो। बस तवील अहमद नहीं देनी, जाहिर है सिर्फ मरहूमीन को इसाल करना है सवाब। इसी बीबी के बारे में, ये जो बीबी रबाब है ना, बीबी रबाब एक मकामुल विर्द एक जगह है, क्रिश्चियन की बस्ती है। जब वहाँ ये काफिला पहुँचा तो बीबी थी ऊँट पे और औरतें बैठी थी। उन्होंने जब देखा एक छोटे बच्चे का सर, तो वो बीबियाँ कहती हैं, ऐ सगीर, अल्लाह करे तेरी माँ तेरे कत्ल से पहले मर गई हो। और मेरा बाप कहती है, ये दुआ ना करो, मैं तो अपने बेटे के कातिल देखती हुई आ रही। जब बीबी आई थी ना तो अपने वारिस की कब्र पे एक अजीब बैन किया था। अजीब बैन था। वो बैन ये था कि मौला, असगर का कातिल बार बार मेरे करीब आता था, मेरी सवारी के करीब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और बीबी ज़ैनब से किसी ने पूछा मदीने में सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी? का सबसे बड़ी तकलीफ जिंदान में उस वक्त होती कि जब सहर का सितारा तुलू करता और असगर की माँ असगर को याद करती कि बेटा तेरे दूध का वक्त हो गया। सारी बीबियां 40 के बाद महमलों में बैठ गई, एक असगर की माँ न बैठी। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अम्मा आप नहीं चलेंगी? बीबी ज़ैनब ने कहा, भाभी आप नहीं चलेंगी? अजब जुमला कहा, रसूल ज़ादी जितनी बीबियां मदीना जा रही हैं इनका कोई ना कोई रिश्तेदार मदीना में मौजूद है। मेरे सादात के साथ 3 ही रिश्ते थे। वारिस मेरा करबला में है, बेटा मेरा यहाँ है, बेटी मेरी शाम रह गई। मुझे अपने भैया की कब्र की मुजाविर बना दे, जब कोई ज़ाहिर आएगा ठंडा पानी पिलाऊंगी। और ये कह के निकली थी, मौला आपकी लाश को धूप पे देखा है, न ठंडा पानी पीऊंगी न साए में बैठूंगी। जिंदान ऐसा मिला जिसकी छत न थी। साल गुजर गया। आबिद बीमार कहते हैं, सैयदा ज़ैनब कहती है कि धूप में बैठी रहती, गर्म पानी पीती रहती। एक रोज फूफी भतीजे ने सोचा जाके रबाब से कहे कि उठ के साए में आए। एक मर्तबा एक बाजू ज़ैनब ने पकड़ा, एक सैयद सज्जाद ने पकड़ा। उठो अम्मा, मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। उठो भाभी। एक मर्तबा रुख किया करबला का, मौला तुझसे वादा किया था, और फिर रुख किया अर्श का, या अल्लाह मेरी इज्जत रख ले। न इमाम हुसैन से किया गया वादा तोड़ सकती हूँ, न इस बेटे के हुक्म की हुक्मदूरी कर सकती हूँ। मेरे सगीर का वास्ता, मेरी इज्जत रख
रख ले। अब जो बीबी रबाब साए में आई, नब्जों पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब आलिया ने वो पोटली खोली जो बीबी ने करबला से शाम, शाम से करबला, करबला से मदीना अपने पास रखी। अब जो पोटली खोली तो कोरा में मातम बपा हुआ। अली असगर के जले हुए झूले की लकड़ियां, बेटा नहीं तो निस्बत ही से। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।